Okay, first of all, good evening to all of you. Just let me summarize. In the last class, we have talked about basic computer organization, in which we have discussed about what is computer and what is computer system. And then we talked about hardware. Then we talked about software. Then we talked about difference between hardware and software. Then we talked about input devices, output devices. Then we talked about CPU and its components. And then we talked about memory and the types of the memory. That means primary memory, secondary memory. And then we understood why there is a need of cache memory. And okay, and after that, we also discussed about the booting process. And then we'll talked about units of memory. Okay. And then we discussed about what is bit, nibble, byte, which is group of 8 bits, then KB, MB, GB, TB, PB. So in this video or in this class, we will be discussing about types of software. So what are the types of software we have in computer system? Then it is a system software. Then we'll talk about programming tools. Okay. And then we'll talk about application software. In system software, we have operating system utilities, and device driver. And in programming tools, we have the language translator. And translators means assembler, compiler, and interpreter. And then in application software, we will have general purpose software and then customized software. Okay, so let's begin with the today's class. So today we are, as we already told you, we are going to discuss with types of software, that means system software, application software, and then programming tools and language translators. Okay. So as we already discussed about software in the basic organization, software can be defined as a collection of programs or set of instructions which make hardware functional. The main term over here is making hardware functional to complete the desired task. Software alone itself does not do the task. It enables hardware so that hardware will be able to complete the desired task. So if I talk about the examples of software, we already discussed like PowerPoint, MS Word, Java, Google Chrome, then Gmail, and so many others. McAfee is antivirus, that is Android. Okay, and so on. So if I, in short, I'll say, is software written for some computational purpose. कोई भी सॉफ्टवेयर जब भी लिखा जाता है, it has something task कि भाई कि ये एक task perform करे. ठीक है, let's move ahead. First of all, what is the need of a software? ठीक है, अगर सोल पर्पस की बात करी जाए सॉफ्टवेयर की, जो मेन काम है सॉफ्टवेयर का कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर को यूजफुल और ऑपरेशनल कराए. अब होता क्या है, हार्डवेयर आर दोस थिंग्स विच आर फिजिकल डिवाइस विच बिल्ड अप द कंप्यूटर. अब एग्जांपल के लिए क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए हमारे पास एक प्रिंटर है. ठीक है, सपोज करिए प्रिंटर है. अब हमारा प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करता है. But we cannot directly interact with printer. We need to go through the कि भाई हमने कंट्रोल पी दबाया, कंट्रोल प्लस पी करके हमने प्रिंट करा, तो हमने एक प्रिंट कमांड देंगे, तो इस कमांड की हेल्प से ही प्रिंट हो पाएगा. वी कैन नॉट डायरेक्टली प्रिंट ऑन द प्रिंटर का. जो हमारा प्रिंटर का जो डिवाइस होता है उसमें तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती विच अलाउ अस टू प्रिंट. Print will be allowed once we given the command to a computer using control P. Okay, let's move forward then. We cannot instruct the hardware of computer directly. जैसे मैंने अभी बताया ना कि like we cannot instruct कि भाई प्रिंटर को हम ये इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि भाई आप प्रिंट करो. We need to go through a command. तो भाई कि भाई कंट्रोल P दबाया हमने या प्रिंट करके हमने किया, तो that's what we need to do. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक इंटरफेस बनाता है बिटवीन ह्यूमन यूजर्स और हार्डवेयर की हेल्प. ठीक है, तो अगर मैं सॉफ्टवेयर लूं और यूजर लूं, तो यूजर इस काइंड ऑफ क्या होता है, इंटरफेस बनाया जाता है ताकि कंप्यूटर काम है, जो हार्डवेयर का काम है, वो काम परफॉर्म कर पाए, सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो काम परफॉर्म किया जा सके. ठीक है, सॉफ्टवेयर को पता होता है कि जो डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, उनसे काम कैसे कराया जाए या उनसे कम्युनिकेट कैसे किया जाए. तो ये सब होता है हमारा सिस्टम बस की हेल्प से. सिस्टम बस को कंट्रोल कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट. ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ ए सीपीयू. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन. अब किस टाइप का इंटरेक्शन है, कि डायरेक्ट इंटरेक्शन है हार्डवेयर के साथ या फिर इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है,
उस बेसिस पे सॉफ्टवेयर को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन वी हैव प्रोग्रामिंग टूल्स, ठीक है, एंड देन वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेट्स लुक एट देम वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट विल टॉक अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, बेसिक फंक्शनलिटी जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए चाहिए ताकि डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके हार्डवेयर के साथ, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं। तो इन शॉर्ट, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, दे प्रोवाइड द बेसिक फंक्शनलिटी ऑपरेट ए कंप्यूटर बाय इंटरेक्टिंग डायरेक्टली, दे आर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द हार्डवेयर, ठीक है। इसके सिस्टम लाइक सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर आल्सो नो कि कैसे ऑपरेट करना है, कि कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करना है, ठीक है। ये क्या करता है, सर्विस डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है एंड यूजर्स के साथ। और सर्विस क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल कोई ऐप हमने इंस्टॉल किया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऐप इंस्टॉल हुआ है उसको भी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा और एज एन एंड यूजर हमें भी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली इंटरेक्ट करके हार्डवेयर के साथ, ठीक है। एग्जांपल्स कौन से हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर्स। Let's talk about operating system, which we are also going to discuss operating system in detail. After this, in the next class, we will going to discuss about functions and the user interface of operating system. But let's study it here for the short things. जैसे कि नाम बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जो अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। बेसिकली कि इसको मैं बोला जाऊं तो बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कोई सॉफ्टवेयर और इवन कंप्यूटर भी काम नहीं करेगा, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर तो ऑपरेट करता ही करता है, साथ में ये अदर एप्लीकेशन, जो अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उनको भी मैनेज करता है, और साथ में एक्सेस और सिक्योरिटी यूजर्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और साथ में एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर। जैसे आपके होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लॉग इन करते हो तो आपसे क्या मांगता है, विंडोज में जब भी आप लॉग इन करते हो तो आपसे अगर सपोज आपका नाम है तो उससे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड या 4 डिजिट पिन। So that's provide security provided by access and security provided by operating system, ठीक है। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, लिनक्स है, मैकिंटोश है। मैकिंटोश फॉर एप्पल, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स रहते हैं हमारे, नोटबुक हो गया, ठीक है। उबुंटू हो गया, फेडोरा हो गया, एंड्रॉइड हो गया, आईओएस हो गया। एंड्रॉइड एंड आईओएस आर अवर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इफ आई टॉक अबाउट सिस्टम यूटिलिटीज, जो सॉफ्टवेयर जो मेंटेन, जो यूज किए जाते हैं मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंप्यूटर सिस्टम की, उनको सिस्टम यूटिलिटीज बोलते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम की को मेंटेन करने के लिए और उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको बोलते हैं सिस्टम यूटिलिटी। कुछ सिस्टम यूटिलिटीज क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल। अब होता क्या है, जब हम कभी कोई नया कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें हार्ड डिस्क होती है 500 GB की, ठीक है। उसमें कोई ड्राइव नहीं होती, सी डी ई और ई। ये ड्राइव किससे बनाते हैं हम लोग, डिस्क फ्रेगमेंटेशन टूल से बनाते हैं, ठीक है। फिर सिमिलरली फॉर्मेटिंग, कोई सिस्टम हमें कोई ड्राइव फॉर्मेट करनी है या पूरा सिस्टम फॉर्मेट करना है, ठीक है। तो देन अनदर थिंग एग्जांपल है सिस्टम रिस्टोर। सिस्टम रिस्टोर क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मानिए कि आज 20 सितंबर है, ठीक है, और आपका कंप्यूटर सही से नहीं चल रहा है। ऑन दी अदर हैंड 10 सितंबर को, यू नो कि 10 सितंबर को ये अच्छा चल रहा था, तो आप क्या करोगे, इसको रोल बैक करोगे, रोल बैक और रिस्टोर करोगे सिस्टम को, सो दैट जो आपको सिस्टम 10 तारीख को सही से चल रहा था वो उस कंडीशन में वापस से पहुंच जाए, ठीक है। अब होगा क्या, जो 10 से 20 के बीच में जो भी काम हुआ है वो काम तो इरेज हो जाएगा, लेकिन आपको जो सिस्टम है वो फंक्शनली करना पड़ जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिस्टम रिस्टोर। ऐसे होता है फैक्ट्री रीसेट। आपने फोन फोन में सुना होगा ना, फैक्ट्री रीसेट होता है एक बटन, जो क्या होगा, सिस्टम पूरा डिलीट कर देगा। Similarly, this is called also called can be called as system restore at initial level, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब कुछ ऐसी यूटिलिटीज भी आती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं आती और हमको क्या करना पड़ता है, उनको डाउनलोड करना पड़ता है, पर उनकी जरूरत पड़ती है सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। अगर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए, डिस्क को क्लीन करने वाले सॉफ्टवेयर हो गए, डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर हो गए। एक हमारा वो भी आता है विन आर ए आर, उससे क्या करते हैं हम लोग, फाइल को कंप्रेस करते हैं और सेंड कर देते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, अगर मैं पूरे कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं तो पूरे सिस्टम की ओवरऑल वर्किंग जो डिपेंड करती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है सारा। तो जैसे क्या होता है, हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल का जो मेन काम करते हैं वो सब एचओएस सर करते हैं। ठीक है। लेकिन अब होता क्या है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया काम आता रहता है, तो वो काम को क्या डिवाइड किया जाता है, टीचर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है। सिमिलरली अब हर दिन होता क्या रहता है कि भाई नए डिवाइस आ गए, कंपोनेंट आ गया, तो उस तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अकेले के बस की नहीं है कि वो सारा काम मैनेज कर पाए। कि भाई होता क्या है, सपोज करो नया नया डिवाइस आई, कि भाई सपोज करो ग्राफिक टैबलेट आ गया, ग्राफिक टैबलेट जिसकी वजह से हम ये लिख पा रहे हैं ऑन द स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक टैबलेट। तो ग्राफिक टैबलेट आया, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इस फंक्शनैलिटी या तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास को पता हो कि भाई इसको कैसे फंक्शन किया जाए, या फिर इसके लिए हमने क्या करा, एक डिवाइस ड्राइवर बना दिया। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया ना कि डिवाइस ड्राइवर कम्स इनटू द पिक्चर। इस ड्राइवर का काम क्या है कि जो डिवाइस हमने इंस्टॉल करी है इसका प्रॉपर फंक्शनिंग हो। कि जैसे ये ग्राफिक टैबलेट है तो इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाए, कि भाई जैसे सपोज करो इसकी फंक्शनिंग क्या है कि मैं स्क्रीन पर लिख पाऊँ, तो ये स्क्रीनिंग को परफॉर्म कर पाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसकी वेबसाइट से जाके पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा उसके ड्राइवर को, और इसको फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। जो ड्राइवर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह क्या करता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। अब क्या कर रहे हैं, ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो डिवाइस ड्राइवर आ गए। ठीक है। तो क्या करता है डिवाइस ड्राइवर, जो भी सर्विसेज चाहिए होती हैं इस हार्डवेयर को, या फिर जो मेरा ग्राफिक टैबलेट है, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, और ये सर्विसेज एज ए यूजर को नहीं दिखाई देती। ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे एक डिवाइस को मैनेज करने की, इट लाइज ऑन द डिवाइस ड्राइवर। जो अब तक क्या हो रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम के पास थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो गई है डिवाइस ड्राइवर के पास। ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जैसे कि हम ऑलरेडी पता है कि भाई कंप्यूटर को कुछ भी काम करने के लिए अपना हमें जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, हमें कुछ इनपुट्स देने पड़ते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है उस इनपुट को और अकॉर्डिंगली आउटपुट देता है। ठीक है। अगर सपोज करो मैं इंस्ट्रक्शन की बात करूं इन द फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर की बात करूं, तो बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप करी गई थी, जैसे कि सी हो गए, C++ हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, रूबी एंड सो मेनी अदर लैंग्वेजेस, सो दैट की कंप्यूटर कैन बी इंस्ट्रक्टेड एंड कैन परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क। ठीक है। इन सबको राइट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हमारे प्रोग्राम्स यूज कर रहे हैं, उन सबको राइट करने के लिए वी रिक्वायर आईडीज। आईडीज इज अवर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है कि भाई हम कोड लिख सकें, यानी कि प्रोग्राम लिख सकें, उस प्रोग्राम को रन कर सके, और जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, यानी कि जो आउटपुट आ रहा है वो भी देख सके। तो दोज इज कॉल्ड अवर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है। और जैसे एग्जांपल के लिए हो गया स्पाइडर के आईडी हो गया, स्पाइड्रोइड इज फॉर ऑनलाइन फॉर मोबाइल। ठीक है। स्पाइडर इज फॉर लैपटॉप और डेस्कटॉप, दैट मीन्स कंप्यूटर। और अदर पॉसिबल केसेस क्या, ऑनलाइन, जैसे क्रोम क्रोम पे गए या मोजिला पे चले गए आप लोग, और ये सब प्रोग्रामिंग हम वहाँ भी कर सकते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने का, दैट आई वांट टू शेयर यू गाइस, कि जो हम कंप्यूटर और इंसान होते हैं वो दे अंडरस्टैंड डिफरेंटली कंप्लीटली, बिल्कुल अलग अलग लैंग्वेज समझते हैं। जैसे हम लोग क्या है, वी अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। हम हाई लेवल समझते हैं और हाई लेवल में ही काम कर सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। ऑन दी अदर हैंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था ना बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में, बाइनरी, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। ठीक है। तो एज एन ह्यूमन वी अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज, एंड एज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। ओके। इसी डिफरेंस की वजह से हमें क्या चाहिए होता है कि भाई हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमें क्या करे, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करे। ठीक है। तो दो सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लासिफाई करूं, तो देयर बेसिकली दो मेजर कैटेगरीज, एक तो लो लेवल लैंग्वेजेस हो गई, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेजेस हो गई। लेट्स प्रोसीड फर्दर। लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं। मशीन डिपेंडेंट इन द सेंस
कि भाई किसी सीपीयू के लिए अलग होगी, सीपीयू 1 के लिए अलग डिपेंडेंट होगी, सीपीयू 2 के लिए अलग होगी। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज इंक्लूड होती हैं? फर्स्ट हमारा मशीन लैंग्वेज, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 1, एंड देन अनदर इज असेंबली लैंग्वेज। लेट्स टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम। मशीन लैंग्वेज क्या करती है, जैसे कि हमने अभी बताया कि मशीन लैंग्वेज यूजेस वंस एंड जीरोस टू राइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज जैसे कंप्यूटर बताया ना, कंप्यूटर 0 1 की लैंग्वेज समझता है to write instruction which are directly understood and executed by computer. तो as we were talking about कि कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, पर एज ए ह्यूमन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि भाई हम मशीन लैंग्वेज को समझ पाए। सपोज करो अगर हमारे पास ऐड के लिए एक कोड होता 0 1 0 0 0 1 1 1, सपोज करो ये कोड होता हमारा ऐड करने के लिए। सिमिलरली सबट्रैक्ट करने के लिए कुछ और कोड होता है। ठीक है, तो एज एन ह्यूमन बीइंग इट इज नॉट पॉसिबल अस टू रिमेंबर ऑल दोस, ये जो कोड्स हैं और जो एड्रेसेस हैं इन सबको याद कर पाए। ठीक है, और फिर प्लस सपोज करो आपने जैसे तैसे करके एक प्रोग्राम लिख भी लिया, तो अगर कोई एरर आया तो उस एरर में उस प्रोग्राम में एरर फाइंड करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस असेंबली लैंग्वेज व्हिच हैज कि भाई इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स थे उसके अंदर वंस और जीरोस की जगह। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, we have the one instruction from assembly language. It is move AL 1661H. 61H is 97 in hexadecimal. ठीक है, AL is a CPU register. So what does this instruction is telling कि जो रजिस्टर AL है उसमें 97 की वैल्यू मूव करा दो। ठीक है, तो those types of the instructions are developed in assembly language. Okay, let's move forward. और जो मेजर ड्रॉबैक रहा इस लैंग्वेज में कोड करने का, यानी कि असेंबली लैंग्वेज में जो कोड करने का मेजर ड्रॉबैक रहा कि ये जो कोड रहता है यानी कि जो प्रोग्राम रहता है ये कंप्यूटर स्पेसिफिक होता है। कंप्यूटर स्पेसिफिक मींस फॉर एन एग्जांपल कि जो कोई भी सपोज करो हमने प्रोग्राम लिखा सीपीयू 1 के लिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम सीपीयू 2 पे के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर सपोज करो हमने P1 प्रोग्राम लिखा P1 असेंबली लैंग्वेज में, तो ये प्रोग्राम हम P2 पे रन नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर कोई माइक्रो प्रोसेसर क्या होता था पहले 8085 होता था, तो 805 के लिए अलग असेंबली लैंग्वेज थी। ठीक है, 8086 के लिए अलग थी, एंड सो ऑन। दैट मीन्स अगर i3 है तो उसके लिए अलग लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, i5 के लिए अलग, i7 के लिए अलग। तो एज एन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि भाई वो किसी चीज के लिए काम करे और किसी और दूसरे सीपीयू के लिए काम ना करे। ऑन दी अदर हैंड फिर क्या हुआ कि हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप करी गई जो कि क्या होती है, मशीन इंडिपेंडेंट रहती हैं। ठीक है, विच आर मशीन इंडिपेंडेंट एंड सिंपलर टू राइट कोड। सिंपलर टू राइट कोड क्यों है? क्योंकि एज एन ह्यूमन वी अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज एंड इट विल बी मोर इजी टू अस टू राइट some instruction, some program in high level language rather than assembly or machine language. ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, उसमें इंग्लिश टाइप के सेंटेंसेस होते हैं और थोड़ा सेट ऑफ रूल्स भी होते हैं, वो नेचुरल लैंग्वेज की तरह होते हैं। तो एग्जांपल के लिए कौन कौन से लैंग्वेज हो गई हमारे पास हाई लेवल? सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, पाइथन एंड देन रूबी। ओके, सो गुड सो फार। किसी को कोई डाउट है तो ही कैन आस्क इन द बिटवीन। ठीक है, वेल cater to their doubt. Okay, so here comes the concept of the language translator. As we discussed already, if some program is written in high level language, ठीक है, in order to convert it into the machine language, we require language translator. Okay, sir, can you explain low level language again? So, okay, I'll come to that point. Just let me finish this one. I'll just introduce in this one. Low level languages are those level which are machine dependent. Machine dependent in the sense कि भाई कंप्यूटर सपोज करो CPU 1 के लिए अलग कोड लिखा गया है, तो वो कोड CPU 2 के लिए रन नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने i3 के लिए कुछ लिखा है तो वो मैं i5 के लिए रन नहीं कर सकता। सिमिलरली उस प्रोग्राम को मैं राइजन के लिए नहीं लिख सकता। दोज आर कॉल्ड अवर लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस की मैं बात करूं तो हमारे पास दो टाइप के लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें असेंबली एंड मशीन लेवल। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। अब होता क्या है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा होता है वो ह्यूमन बीइंग के लिए तो आसान हो गया, पर ये लैंग्वेज इसको समझ में नहीं आती कंप्यूटर को। कंप्यूटर क्या समझ में आती है? मशीन लैंग्वेज। तो हमें क्या करना चाहिए, बीच में एक इंटरमीडिएट डिवाइसेस चाहिए जो क्या करे,
हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करे, जो हाई लेवल लेवल या फिर हमारा असेंबली में जो प्रोग्राम लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। ठीक है, एक जो पॉइंटर नोट डाउन करने के लिए, कि जो कोड रिटर्न होता है असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज में उसको हम बोला जाता है सोर्स कोड। ठीक है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आप गए जापान एंड एज एन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, यू नो, एज एन इंडियन यू नो इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, और योर रीजनल लैंग्वेज जो भी आपको आती है, बट यू डोंट नो अबाउट द जापानीज। बट इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर और इन ऑर्डर टू कुछ वहां कुछ काम करने के लिए यू नीड टू हैव कि भाई आपको या तो जापानीज आए, ठीक है, या आपको कोई ऐसा एग्जाम चाहिए जो आपको जापानीज से कन्वर्ट करके दे दे इंग्लिश या हिंदी में। ठीक है, तो दोस आर कॉल्ड आवर ट्रांसलेटर्स। जो ये काम करेगा दोस आर कॉल्ड आवर ट्रांसलेटर्स, बिकॉज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। सिमिलरली इन computer understands low level language, and on the other hand we as a human we understand high level language। ठीक है, let's proceed further then। किसी को कोई डाउट अब भी क्लियर नहीं आ रही है क्या? Krish, Mayank, is my voice clear or not? Reply yes, okay, clear आ रही है। Is it clear or not? Okay, clear। Okay, let me proceed further। So any doubt till now, language translators? Okay, let me proceed further then। So different टाइप की कंप्यूटर लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट ट्रांसलेटर्स आर नीडेड। ठीक है, सपोज करो सी प्लस प्लस और जावा है, उनके लिए कंपाइलर चाहिए। पाइथन और वो सारी लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटर चाहिए। असेंबली के लिए असेंबलर चाहिए। ठीक है, सोर्स कोड इज जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, उस जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इन कंप्यूटर सिस्टम वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स। ठीक है, first one is assembler, which will convert assembly language into the machine language. Then we have compiler, which converts some portion of Python or some portion of programming language into the machine language. And then we have interpreter, which also does the same thing as compiler, but style of doing their tasks is different. We'll discuss in the later part of the class। ठीक है, first talk about assembler। ठीक है, जैसे मैंने बताया जो वो ट्रांसलेटर जो कन्वर्ट करता है रिटन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। तो वो ट्रांसलेटर जो हमारा असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में करता है दोस इज कॉल्ड आवर असेंबलर। ठीक है, जैसे कि हमने बताया जो उसका मशीन कोड रहता है वो पोर्टेबल नहीं होता। दैट मींस सीपीयू पर रन कर रहा है तो सीपीयू पर रन नहीं करेगा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है या हमारा जो सोर्स कोड हो गया उसको क्या करता है, वो एट ए वन गो में उसको कंपाइल करता है या फिर रन करता है। ठीक है, हम जो भी कोई प्रोग्राम करते हैं पर इसको रन करा जाता है सो दैट कि वो हमारे डिजायर्ड आउटपुट दे। ठीक है, अगर सारे इसके रूल्स सही हैं, जैसे हमारे रूल्स होते हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज में कि इसके बाद एम आना चाहिए, इसके बाद आर आना चाहिए या समथिंग, इज एम आर जो आने चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद इज एम आर आना चाहिए, वर्ब सेकंड फॉर्म के बाद ये आना चाहिए। सिमिलरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सब रूल्स होते हैं। अगर वो सारे रूल्स सही हैं तो जो क्या होगा, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट हो गया यानी एक बार ट्रांसलेट हो गया प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में, तो उसके बाद कंप्यूटर कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कंपाइलर कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज करती है, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया या जावा हो गया हमारा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या है? इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में,
और पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है, जो इंटरप्रेटर होता है, वो भी क्या करता है, ट्रांसलेट करता है पूरे सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में। बट कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन करता है। ऑन दी अदर हैंड जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, वन लाइन एट ए टाइम। कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम एट ए वंस। ठीक है, होल प्रोग्राम एट ए वंस करता है। बट ऑन दी अदर इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है वन लाइन एट ए टाइम। तो इंटरप्रेटर कहता है क्या है, एक लाइन ही उसने उसको कन्वर्ट करता है एक्सिक्यूटेबल कोड में। अगर वो लाइन सिंटैक्टिकली सही है, फिर क्या करता है, फिर वो उस स्टेप्स को रिपीट करता है बाकी सारे लाइंस के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इंटरप्रेटर की जरूरत हमेशा पड़ती है जब हमें कोई सोर्स कोड एक्सिक्यूट करना होता है। लेट्स लिसन टू द डाउट्स। ओके, लेट मी प्रोसीड फर्दर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट टूल्स। सपोज वी नीड टू राइट ए प्रोग्राम। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, जो हमको अलाउ करता है टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन टाइप कर पाए और उस फाइल को एज ए सोर्स कोड वी कैन स्टोर कर पाए। फिर क्या चाहिए हमें, उसके बाद हमें चाहिए ट्रांसलेटर। अब जैसे हमें क्या चाहिए था कि जो हमारा सोर्स कोड था, ठीक है, उसको कन्वर्ट किस में कर दे, ऑब्जेक्ट कोड में, यानी कि मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट एडिटर चाहिए और ट्रांसलेटर चाहिए। तो इन सबको प्रोग्राम डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए इनका सबका क्या बंडल बनाया जाता है और एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है। उस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है, बिल्डिंग टूल्स होते हैं और डीबगर्स होता है। डीबगर क्या होता है हमारा, डीबगर यानी कि सपोज कोई एरर आया तो उस पूरे प्रोग्राम को डीबग करने के लिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब होता क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या कराते हैं, हमारी कोर फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। लेकिन डिफरेंट यूजर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट की वजह से क्या होता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट वो चाहिए होते हैं, सॉफ्टवेयर एज वेल। तो इसको नई कैटेगरी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के टॉप पे रन किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। इस एग्जांपल के लिए बोलूं तो एमएस ऑफिस हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एडोब पीडीएफ रीडर हो गए, वेब ब्राउजर हो गए, क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, एक एक जो नोट करने का पॉइंट है वो ये है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है, इट कैन नॉट वर्क विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना तो चल सकता है, बट इट कैन नॉट वर्क विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैन नॉट वर्क विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर सिस्टम कैन वर्क विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। वन इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, देन इज अनदर वन कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की बात में करूं तो जनरल जो पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं ये डेवलप किए जाते हैं एप्लीकेशन के लिए, ताकि जो बहुत सारी ऑडियंस के लिए जो बनाया जाता है। जैसे अगर एग्जांपल लूं तो जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, स्टिकी नोट्स हो गए, या गूगल ड्राइव हो गई। ठीक है, कुछ इस क्या होता है, अपने यूजर्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको यूज करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, स्टिकी नोट्स आप अपने हिसाब से यूज करते हो, एक गूगल में जो मेल है दैट यू यूज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, या फिर यूट्यूब हो गया तो अपने अपने डिफरेंट टाइप के कंटेंट देखने के लिए आप अपने हिसाब से यूज करते हो। ठीक है, ऑन द अदर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो डेवलप किए जाते हैं ताकि स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की मीट करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करो आपने एक अटेंडेंस काउंटर बनाया। ठीक है, एक अटेंडेंस काउंटर एक एग्जांपल क्या हो गया कि भाई जो काउंट करेगा कि कितने कितने रूम में एंटर करे, कितने लोगों ने रूम में एंटर किया, दैट इज अवर जनरल। और सपोज करो अगर आपने बनाया जीबी ट्रिपल एस क्लास 11th के लिए कि भाई कौन कौन से बच्चों ने अटेंडेंस ली, उसमें आप क्या करेंगे, 50 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल 11th ए में, तो 50 बच्चों के लिए 50 बच्चों का नाम उसमें ऐड कर देंगे। दैट इज अवर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर विच विल टेक अटेंडेंस ओनली क्लास 11th ए। On the other hand, if we made attendance counter for the general public, that is our called general purpose software. ठीक है, तो जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन नीड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं।
ठीक है, जैसे कोई वेबसाइट हो गई या स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया या कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, एंड देन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर क्या होता है कि भाई या तो फ्रीवेयर हो सकता है, ओपन सोर्स हो सकता है, या प्रोप्राइटरी हो सकता है। ठीक ठीक है, कि वो किस तरह से शेयर किया गया है, प्लस वो किस ग्रुप ने डेवलप किया है, और वो डेवलप करने के बाद उसने कैसे उसको रिलीज किया है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं, सपोज करो आपको कोई सॉफ्टवेयर दिया गया है, ठीक है, फ्रीली यूज करने के लिए, प्लस साथ में उसको आपको सोर्स कोड भी दिया गया है, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर में चेंज कर सकें और ताकि सॉफ्टवेयर और आगे डेवलप हो सके। तो उसको बोला जाता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब होता क्या है कि जो डेवलपर्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर तो देते हैं फ्रीली पब्लिक को यूज करने के लिए, साथ में ही सोर्स कोड भी देते हैं, ताकि उस जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको और डेवलप किया जा सके और फर्दरली इंप्रूव किया जा सके एक दूसरे की हेल्प से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो उबुंटू हो गया, उबुंटू इज आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। पाइथन हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, लिब्रे ऑफिस इज लाइक एमएस ऑफिस का ऑल्टरनेटिव। सिमिलरली ओपन ऑफिस हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया जो हमारा वेब ब्राउजर होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, वही अगर सिर्फ हमारा सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है और उसका सोर्स कोड नहीं है हमारे पास, तो दोज आर कॉल्ड अवर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो गया, स्काइप हो गया, जूम हो गया, एडोब रीडर हो गया, गूगल मीट हो गया। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें जिसको यूज करने के लिए हमें वो खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जैसे क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज हो गई, अब हमें कोई विंडोज रन करनी होती है तो हमें सपोज करो 3-4 हज़ार रुपए की मिलती है। या टैली सॉफ्टवेयर हो गया, या कोई कोई एंटीवायरस हो गया। तो इसमें पॉसिबल केस क्या है कि आपको ये 1 महीने 2 महीने के लिए फ्री मिल जाए, बट एट द एंड इफ यू नीड टू यूज इट अगेन, तो यू नीड टू पे द चार्जेस पर मंथ और वन टाइम फीस डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो टिल नाउ, okay, so till now we discussed about the operating system software, what are operating system utilities, okay, and device drivers. And then we talked about programming tools, okay, programming calculation. Then we have language tools, that is also called as language translators. Then we talked about programming development tools, which include ID, उसको ID भी कहा जाता है, editors, ठीक है, debugger और program translator. Then we talked about what is application software, and then software we talked about general purpose software, which is meant for the bigger audience, that means majority of audience. And then we have the customized software, which is meant for कि भाई किसी इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करने के लिए. Then we talked about proprietary or free and open software which are free to use, और उनका हमारे पास सोर्स कोड भी होता है. Those are called our free open source software. ठीक है, and then we have freeware, जिसमें सॉफ्टवेयर तो फ्री टू यूज होता है और उसमें सोर्स कोड नहीं होता. ठीक है, देन वी हैव प्रोप्राइटरी, जो ना तो फ्री टू यूज होते हैं और सोर्स कोड तो होता ही नहीं है. ठीक है, इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मनी पे करनी पड़ती है. तो दैट्स इट फॉर द डे. किसी को कोई डाउट है तो ही कैन आस्क. कार्तिक एंड मयंक. हाँ मयंक, सर मुझे एक बार इंटरप्रेटर समझा दो, जब आप समझा रहे थे ना तो वॉइस नहीं आ रही थी. ओके, इंटरप्रेटर आई विल टॉक अबाउट. ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट इट. इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस करेंगे तब भी पढ़ेंगे वैसे तो, but still just for the sake of completion I'll let you know about the interpreter. Okay, ठीक है. इंटरप्रेटर क्या होता है हमारा, कंपाइलर क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द डिफरेंस कि हमारा जो भी कुछ सोर्स कोड है, ठीक है,
उसको पूरे पूरे सोर्स कोड को एक बार में एट वन गो में कंपाइल करता है, यानी कि रन करता है और अकॉर्डिंग टू मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड देता है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो ट्रांसलेट इंटरप्रेटर क्या होता है, फॉर एग्जांपल 20 लाइन का प्रोग्राम, ठीक है, तो 20 लाइन का प्रोग्राम वो एक एक लाइन एग्जीक्यूट करता है एक एक बार में। ठीक, दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर।